ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੁਕੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹੜਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੇ ਸਿਰਜਹੁ ਅੰਕੁਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਹਸਤੇ ਸਿਰਜੋ ਅੰਕਸ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ। ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ, ਉਬੇ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਐ, ਜਾਇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਆਏ ਤੇ ਪਰਵਾਣ। ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ, ਦਰਗਾ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਪੌੜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਘਰੈ ਲਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ, ਤਿਨਾ ਭਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਭਾਈਆਂ।
ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਈਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਭਾਈਆਂ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੋ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੋ ਆਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਸਤੇ ਸਿਰਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਨੰਬਰ 647 648 ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਤੇ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤੇ ਸਿਰ ਜੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਕੁੰਡਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਹਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹਰਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
हसते सिर जो अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे। हुण इत्थे पावन बचन कीते कि मन तन आगै रख के उभी सेव करे। भाई सिखा तू भी उस तरह ही अपना मन ते तन गुरु साहब के अगे रख के उभे का भाव है सुचेत हो के सेवा दे विच लग, क्योंकि मन ते तन इस तरह अगे रख जिवें उस अंकुश ने अहरण थले दिता ते हाथी ने अपना सिर जिहड़ा है वो कुंडे हेठ दिता। हुण सतगुरु जी ने जिहड़ियां सानूं उदाहरणां दित्तियां, देखो मनुख शुरू तो लैके जदों साइंस ये कहने कि हजे इन्नी तरक्की विच नहीं सी, मनुख ने यतन किया कि जंगल दे विच जिन्ने जानवर ने अज भी उन्हां दे विचों जिन्ने काम आउण वाले सन कि जिन्हां तो मनुख काम लै सकदा है, उन्होंने इन्हां ने फड़िया। फिर उन्होंने जेड़े जेड़े ढंग नाल कोई सीखण वाला सी सिखाया। और जानवर देखो जिथे उदाहरण लईआं, घोड़ा फड़िया, घोड़े दे लगाम पाई, काम आउण वाला सी, जिन्ना को सीख सकदा सी सिखाया। हुण घोड़ा बड़ा कीमती होवे, भावें करोड़ां रुपइया का भी होवे, अजकल मिलते हैं करोड़ां करोड़ां रुपए के घोड़े ने। कीमती इन्ना होवे तो कोई कहे लै पे लै जा, भावें फ्री च ही लै जा। पर एक गल इहदे ते सवार होएगा, इहदी लगाम जिन्नी मर्जी खिंची इन्हें रुकना कोई नहीं। इहनूं तू सज्जे मोड़ेगा इन्हें मुड़ना कोई नहीं, खब्बे मोड़ेगा खब्बे भी नहीं मुड़ना, अपनी मर्जी नाल ही चलेगा, कोई सवारी नहीं करेगा। पर बंदे ने असल विच यतन किया घोड़ियां नूं भी रोकण दा कि समा सी ऊंट तो कम लेंदे, ऊंट के नक विच भी नकेल पाई, जिथे चाहिए रोक सकीए। इन्हों ने इतों तक हाथी नूं भी फड़िया, और गुरु साहब जी ने तो इस मन नूं भी हाथी किया है। मन कुंचर काया उद्यान है, ये शरीर एक जंगल की तरह का मन बड़ा बड़ा विच हाथी है। पर मनुख ने हाथी नूं ते फड़ लिया, रोकण का यतन भी किया, रोक भी लिया अपनी मर्जी नाल। पर मनुख ने जे नहीं रोकया तो जा रोकण का यतन नहीं किया तो इस मन नूं रोकण का यतन नहीं किया, क्योंकि मन बिल्कुल उस तरह हाथी की तरह ही है। हाथी देखो कई बार मुहावत फड़ भी लेंदे ने और खबरां चाहुंदा भी है। हाथी इशारे ते चलदा है, पर जदों किते पुत्र जे अपनी आई ते आ जाए, ताकत इन्नी फिर ना तो मुहावत की परवाह करता ना किसी कुंडे की करता, क्योंकि आपे तो बाहर हो जाता है। पर बंदे ने फिर भी ऐसे हाथी नूं रोकण दा ते यतन कर लिया। मन नूं रोकण दा यतन किवें करिए? मन नूं रोकिया जा सकता है। हुण देखो उदों जानवर सन, हाथी घोड़े सन, अज गड्डियां ने। गड्डी कीमती होवे, करोड़ां दी होवे, ते किसी नूं विच बिठा के कह दे भी लै जा, भावें फ्री लै जा, पर एक चेते रखी कहते ब्रेक कोई नहीं। ब्रेकां दे वैसे दो ने ना, एमरजेंसी लोड़ पे तो हैंड ब्रेक भी है, पर उस गड्ढे दे विच ब्रेक कोई नहीं, भी लै जा, रस्ता भी पहाड़ी है। फिर तो कोई मूर्ख ही होगा जिहड़ा बवेगा, पता है कि पहाड़ तो उतरना, ब्रेक कोई नहीं, सीधा खाई च जाना। पर इस मन नूं बंदे ने ब्रेक लाउण दा यतन किया ही नहीं, क्योंकि भट्ट चांद जी कहते हैं मन जिहड़ा इस सीधे पासे चलण वास्ते राजी नहीं, ना ही इन्हें चलना है। इनू रोक के भी नहीं रखना, चलना जरूरी है, चलाउणा भी है, पर चलते हुए इनू जे रोकी ही ना, फिर इस मन ने लै जाना विकारां वाले पासे, नशियां वाले पासे। फिर इस मन ने डिगना खड्डियां दे विच, पर बंदे ने यतन किया नहीं। भट्ट चांद जी कहते हैं, देखो बचन कई बार साझा किया, भट्ट चांद जी ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं,
ये केवल बाहर का दोहरा है। भट्ट चांद जी ने लिखा है कि मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ी है। मन तो बुराइयां लोचदा है, और देखो आपो अपने मन का सबनों आप पता है। मेरे मन का मैनू पता है, तुहाडे दा तुहानू पता है, क्योंकि मन कोई इवें दी चीज़ नहीं कि जिन्हों किसी दूरबीन नाल वेख्या जाए या किसी साइंस नाल वेख्या जा सकता हो, क्योंकि मन तो सिर्फ एक ख्याल है ना। और कदों किंदे अंदर केड़ा ख्याल आ जाए ये तो वही जानता है। पर इस मन नूं रोकण का यतन नहीं किया। भट्ट साहब जी कहते ने रोकया जा सकता है। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी यह मन होड़ीए, गुरु के शब्द नाल इहनूं रोक। साइंस ने जहाज बना दिता, पर जे कोई ये कहे जहाज हुण जिन्ना जरूरी उड़ना है वो 100-200 सवारियां लैके भी उड़ जाता है, उन्ना ही जरूरी उनका थले लैंड होना भी तो जरूरी है ना। जे कोई कहे टिकट इहदी बिल्कुल फ्री है उत्ते बैठ जाओ भाई, और कोई केवल बैठ ही जाएगा जहाज च कभी नहीं बैठे बैठ जाइए, उड्डण तो पहलों दस दिता जाए कि उड्डेगा जरूर पर यह लैंड नहीं होना। ये थले आना जानता ही इन्हां दे विच थले आने वाला सिस्टम ही नहीं, उत्थे आपां बिल्कुल कोई नहीं पवेगा। पर ये जिहड़े मन दे सवारी करके रब दे परमेश्वर दे घर तक जाना सी, ये बंदे ने कदे नज़र ही नहीं मारी कि ब्रेकां दी तो इहनूं भी लोड़ है। पर गुरु साहिब जी ने ये ब्रेकां मन दियां लाइयां ने। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सानू समझाया है। पर गुरु साहिब की बाणी पढ़ के विचार के सुना के सुन के चले जाइए, ब्रेकां लाउण दा फिर भी यतन न करिए तो फिर तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि देखो फिर तो हालत उवें दी है कि बंदा चौंक दे विच पुछ के खलो के पुछदा रहे सारिਆਂ ਤੋਂ भाई दिल्ली नूं रस्ता ही जाता है, ਜਾਂ पुछदा रहे कि दरबार साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जाना रस्ता यही जाता है। सब तो पूछी जाए पर पैर एक भी चले ना तो दरबार साहब पहुँच सकता ना दिल्ली पहुँच सकता है। वो किसी मंजिल ते जे पहुँच नहीं सकता, ये 200-400 किलोमीटर का रस्ता तय नहीं कर सकता। तो सिखो कदे विचार करो, गुरु साहिब तो आप सुनिया तो बड़ी वारी, पुछते तो बड़ी वारी रहे, तो जे कदम एक भी पट्टिया नहीं तो रब के दर ते असीं किवें पहुँच जाएंगे। देखो भाई साहब भाई गुरदास जी का पावन वचन है कि पुछत है पथ पर पुछदा रवे, तो पैर जिहड़ा हो कदे तरी ना। पुछत है पथ कते मार्ग ना धारै पग। फिर कहते हैं कैसे बातन से प्रीतम के देश कैसे जाइए, कहते प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, गल्लां दे नाल जावांगे। और हकीकत यह है असीं सिर्फ गल्लां नाल जाना चाहुंदे हां, और खिमा कर देना है तो गुरु साहिब की बाणी। जे केवल ये विचार करके गल्लां करके चले गए तो फिर गल्लां ही रह जाणियां ने। मैं गल्लां करके चले जाना, आप जी ने सुन के चले जाना है, और बहुतात गिनती में इसे तरह हो रहा है। असीं सिर्फ गल्लां नाल पहुँचना चाहुंदे हां, क्योंकि जे जाना है तो भाई साहब ने उदाहरणा भावें बड़ियां दित्तियां कि कोई पुछदा रहे वैद कित्थे है, वैद कित्थे है। डॉक्टर बड़ा जरूरी MD डॉक्टर चाहिए है। हुण पुछ भी लिया, चलो उतों तक बंदा चला भी जाए, क्योंकि आप भी चल के आई जाने ना, डॉक्टर गुरु कोल वैद कोल चल के आ भी गए। पर उस डॉक्टर ने जो दवाई लिख के दी उस दवाई को खावे ही ना तो बीमारी ठीक होएगी जी। पर पता नहीं साडी सोच किवें दी बन गई, असीं गुरु डॉक्टर को गुरु वैद कोल आउणे तो जरूर हाँ, और दवाई खाना ही नहीं चाहते, तो चाहुंदे कि सानूं सारे सुख भी मिल जाण, असीं ठीक भी हो जाइए। भाई साहब जी कहते हैं भाई इवें नहीं, पूछत है वैद
खाद औखद ना संजम सै, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। इसे तरह भाई साहब ने अखीर ते जिहड़ी उदाहरण दिती, कहते जदों तक गुरु के उपदेश नूं कमाईए ना सुन के, तो भावें सारी सारी रात अखा बंद करके बैठे रहिए, और बहुत ताकत सानूं मिलदी अखा बंद करने वाले दी। कीर्तन चलता होगा, अखा मीट के ज्यों झूमते ने कि बड़ा आनंद आ रहा है, हो सकता उनका भी हो गई, पर उन्नी कु देर उस कीर्तन दे विचों सानूं उपदेश की मिलिया, कथा दे विचों सिक्ख्या की मिली, जे उन्होंने नहीं ना कमाया तो भाई साहब जी कहते हैं फिर इवें दा भावें सुनिया तो भावें गा के किसी ने सुनाया है। कहते गाए सुने आंखें मीचे, बड़िया अखा मीट मिट के गाए भी सुने भी, पर कहते न पाइए न परम पद। क्यों जी? कहते गुरु उपदेश कहे जो ना कमाइए। जदों तक गुरु के उस दसे हुए रस्ते ते चलीए ना, उपदेश नूं कमाईए ना, तो परम पद भी मिले किवें। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, जिवें हाथी अंकुश के थले रह के हाथी तो बंदे ने काम लिया और हर तरह का लिया, पर गुरु साहब जी समझाते हैं मन भी तो हाथी है भाई। फिर जे सतगुरु जी को पूछिए कि इस रस्ते ते चलना है, चल के पुछ के चलिया जाएगा। पहली गल तो पूछिए, तो केवल पुछते ना रह जाइए 50-50 साल, फिर चलिए भी। सतगुरु जी कृपा करो, बाहरले हाथी नूं तो समझ लग गई, वेख भी लिया कि फड़न वाला किवें फड़दा, किहड़े ढंग नाल फड़दा, फिर अंकुश किवें मारदा सिर ते। इस मन हाथी नूं किवें काबू करिए। फिर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सानू इन्ना बरीकी दे विच समझाया, और आनंद साहब की बाणी जिहड़ी तकरीबन हर एक सिख नूं जे याद नहीं तो केवल याद वर्गी है। हर रोज़ का साडा नितनेम की बाणी है। उत्थे सतगुरु जी समझाते हैं भाई ब्रेकां जे चाहिए ने जरूरी ने, शब्द दे नाल रोकना है तो किवें रोकीए। धन गुरु अमरदास जी कहते हैं रसना नूं समझाते हैं, ये रसना तू अन रस राज रही, तेरी प्यास न जाए। तू होरां स्वादां दे विच पै गए तो इन्हां स्वादां विच पै गए, तेरी प्यास जानी नहीं। देखो संसारिक स्वाद ने ना जिहड़े, ये आपां जानने कोई चीज़ खाण विच बड़ी स्वाद लगती होवे, अज बनाई कल फिर कह दी बनाओ, परसों फिर बनाओ, 5-4 दिन खावां कह देंगे बस अज तो बाद कदे ना बनाओ। उस तो बाद कोई होर देखो, पर ये बाहरले स्वादां दे रस ने कदे अंदर दे तृष्णा नूं मुक्कन नहीं देना, इन्हां स्वादां नाल रजना नहीं। ये बाहरले स्वाद मूँह पै जांदे ने, पर एक स्वाद वो है जिहड़ा रसना दे नाल आ जाए तो ये स्वाद जिहड़ा फिर वधदा ही जांदा है। वो स्वाद है नाम दे रस दा। हुण सतगुरु जी ने समझाया, क्योंकि खाण पाण दी अज साडे समाज विच हालत बहुत ही बुरी है। देखो समा से धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने सानू 350-400 साल पहलों सुचेत कर दिता भी तंबाकू सिख ने बिल्कुल नहीं खाना, तंबाकू आदਿਕ नशे साडी रहत मर्यादा विच लिखिया बिल्कुल नहीं सेवन करने, पर बंदा धुआं पींदा रहा। तंबाकू पीना कि धुआं ही ना जी। और बंदे ने कदे नहीं सोचा भी ये तो धुआं जिहड़ा कुत्ता भी नहीं पींदा, कदे किसी जानवर ने नहीं पीता। ये जिहड़ी शराब बंदा पीन लग गया कदे किसी जानवर ने नहीं पीती। और कदे विचार करके देखो साडी रसना दे ये जिहड़े स्वाद ने कई बारी सानू कुत्तियां बिल्लियां दे नालों भी नीवां लै जांदे ने। साडा खाना पड़ा इन्ना माड़ा। और सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने जिथे खाण पाण उत्थे मनुख ने इन्हां पशुओं नूं जिथे फड़िया। देखो रब ने कुदरत ने ये हाथी घोड़े कई बनाए, ऊंट बनाए, जंगली तुसी घोड़े देखो, ऊंट देखो, उन्हां दे उत्ते वाल ने, पर पशु ने कदे नहीं लभ्या कोई कैंची कोई उस तरह। क्योंकि जे रब ने लाए तो किसी कारण करके लाए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿੱਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਜ਼ਰੇ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕਿ ਪਠਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਰੁਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 8-9 ਜਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਗਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਲੈ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿਉਂ
क्योंकि जे गुरु के घर में जाना है, गुरु की बाणी को समझना, तो फिर गुरु तो ही पूछना पेगा। गुरु के घर जाना है तो फिर एक कृपा गुरु ही करन ते अपने घर आप ही लैके जा सकते हैं। दूजा तीजा तो पूछांगे, और अज तक बड़िया तो पूछ लिया है, कभी किसी बाबे तो, कभी किसी डेरेदार तो, पता किसी को कुछ नहीं, पर दस जरूर दिता कि अगे होर अगे, फिर भरमा दे विच पाया होर अगे। पर जे गुरु के घर जाना तो हकीकत साखे तो सानू सिक्ख्या ये जरूर मिलती है, फिर गुरु तो ही पूछना पएगा। और सतगुरु जी कहते हैं भाई पूछो, नहीं समझ आती पूछो, किवें पूछिए जी, क्योंकि गुरु साहब जी कहते हैं गुर की बाणी गुरु ते जानी। एक शब्द की समझ नहीं पाई, कहते ध्यान दे विच रख के होर पढ़ो, होर पढ़ो, 2 4 10 शब्द पढ़ांगे तो गुरु साहब जी ने आपे दस देना कि इस शब्द के भावर्थ की ने। हुण सतगुरु जी कृपा करते हैं कि ये जिहड़ा मन है इनू जे ब्रेकां लाउणियां तो फिर एक काम कर। भाई लैणा जी ने लगाम फड़ाई सी, तू अपने मन दी लगामां गुरु नूं फड़ा दे। और बाबा कबीर जी ने तो एक पावन वचन बड़ा सोहना किया है, वो कहते लोग देखो घरां दे विच कुत्ते रखते सन, उत्थे शब्द वरत्या है, कई बारी ये आवाज़ भी होती कि गुरु के ताबे ते बैठ के कुत्ता शब्द नहीं वरतना चाहिए। कुकर का अर्थ की है, जे अर्थ करांगे तो कुत्ता ही है ना। और बाबा कबीर जी कहते हैं रब जी परमेश्वर जी मैं तो तेरा कुकर बन गया, कुत्ता बन गया। तो कुत्ते के गल में जिहड़ा वफादार होवे रखिया होवे पटा पाया होंदा है। ये पटा पाया है, ये जंजीर तेरे हाथ में फड़ाई है, हुण मर्जी तेरी है कि जिधर मर्जी खिंच के ले जा। ये मन के लगाम गुरु नूं फड़ाउणी पै गई। जे बाबा कबीर जी का पावन वचन आपां पढ़दे हां कि कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचै तह जाओ। फिर मन दियां लगामां किवें फड़ाइए जी। सतगुरु का एक पावन वचन है कि ये मन तैकू डेवसा लैंदी बोली है कि सतगुरु जी ये मन भी तेनू दे दिया। तो सतगुरु जी को कहते हैं भाई कल्ले तेरे मन नूं असीं करना की है, फ्री विच नहीं लेना। देखो दुकान ते जाइए कोई चीज़ दईए तो वट्टे च कुछ ना कुछ अगों लई देना। और सतगुरु जी ने इन्ने प्यार दे नाल समझाया तू मन दे ना वेच दे, तू मन वेच दे, इहदे बदले च गुरु देगा की। क्योंकि बंदा कोई चीज़ वेचता कोई ना कोई काम रास आ जाए सौर जाए। और गुरु साहब जी कहते तू मन साडे कोल वेच। गुरु के सिक्खा केवल इस लोक दे विच नहीं परलोक दे विच भी जिन्ने काम ने ना वो सारे रास हो जाएंगे। सतगुरु का पावन वचन आप पढ़ते हैं, मन बेचै सतगुरु कै पास, तिस सेवक के कारज रास। और कारज फिर उत्थे सारी आ गई, चाहे वो परमार्थिक हो चाहे संसारिक हो। तो मन वेच बदले दे विच सारे लोक ते परलोक दे सुख लै जा। हुण सतगुरु जी ने कृपा करके अज सानू समझाया, जिवें हाथी कुंडे दे थल्ले रह के वो सेवा करता है, तो कुंडा हाथी दे सिर ते इस करके हुंदा है क्योंकि कुंडे ने पहलू आप अहरण दे थल्ले अपना सिर दिता है। इस तरह गुरु के सिक्खा मन तन आगे रख के उबे सेव करे, तू सचेत होके गुरु की सेवा कर। यो गुरमुखे आप निवारिए सब राज सृष्ट काले। हुण हाथी ने तो सृष्टि का राज नहीं लिया, वो तो गुलाम हो गया। पर सतगुरु जी कहते हैं तू हाथी की तरह जो गुरु के कुंडे थले आ जाएगा ना, सच जानी केवल एक देश का नहीं सारी सृष्टि का राज तेनों मिलेगा। क्योंकि बंदा सारी सृष्टि का राजा भी हो जाए पर मन का फिर भी गुलाम रहिंदा है। और सतगुरु जी ने पावन वचन कहा जो मन नूं जित लिया ना तो सच जानो फिर सारी सृष्टि का राजा ही है। इसे नूं तो गुरु साहब जी कहते हैं ना, मन जीतै जग जीत,
जिन्हों ने जित लिया, गुरु साहब जी कहते हैं अपना आप निवार दिता, उन्होंने सृष्टि का राज लिया है। नानक गुरमुख बूझिए जा आपे नदर करे। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी कहते हैं इस गल नूं गुरमुख बूझिए, ਜਿਹੜੇ गुरु के सन्मुख हो गए ने वो समझते हैं, तो जा आपे नदर करे वो समझते हैं जिन्होंने आप कृपा की नज़र करके समझा दे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी दूसरे श्लोक में बख्शिश करते हैं कि जिन्होंने गुरमुख हो के इस ढंग के नाल नाम नूं ध्याया है, जपिया है, उन्हों का संसार ते उन्होंने परवान है। तो केवल आप ही परवान नहीं हुए, कहते नानक कुल उधारे अपना दरगाह पावै बाण। आप तो परवान हुए, रब के दर ते भी परवान हुए, पर सतगुरु कहते हैं कुल उधारे अपना। और ये जिहड़े धार्मिक मनोविग्यानी कहते हैं एक ही कुल्ला तार लेंदे ने। गुरु साहब ने शब्द वरत्या कुल उधारे अपना, अपने पूरे कुल का खानदान का भी उन्होंने भला कर लिया। और सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने किवें जपण वाला अपने परिवार का भला कर सकता है, तो जे जपना तो जपना किवें। सतगुरु जी ने उदाहरण दिते, कहते देखो वो ध्रुव ते प्रहलाद के उदाहरण देते हैं कि जिन्हों के शरीरों दी छोटा छोटिया उम्रां ने वो जप के आप ही अमर नहीं हुए, आप ही प्रवान नहीं हुए। हरनाकश नूं भावें दुष्ट किया, भावें लोगों ने राक्षस किया, उन्होंने उन्होंने वर्गों का भी भला कर दिता। सतगुरु का पावन बचन है कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। तो उन्होंने एक गल कह दी, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। वो अपने परिवार अपने कुल का भी उद्धार कर जाते हैं। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल, कला परिवार ही नहीं, जिन्हें नाल लगे सब का पार उतारा हो गया। पौड़ी सतगुरु धन गुरु रामदास जी के पावन बचन ने, और इन्हें दो श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, गुरमुख सखियां गुरमुख सहेलियां। ये कह रहे कि जपण वाले गुरमुख प्यारे गुरु ने कृपा करके सानू मिला दिते, संगत बख्शी। एक सेवक गुर पास, एक गुर कारे लाइया। तो वो गुरमुख सहेलियां किहड़ियां ने? एक तो वो जिहड़े गुरु के कोल रह के गुरु की सेवा करदियां ने, एक वो जिन्होंने गुरु ने कामां कारां दे विच लाया है। और देखो गुरु की सेवा आप शब्द बड़ा वरतने, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा सिर्फ चौर सब करना ही नहीं, गुरु की सेवा सिर्फ रमाने लाना ही नहीं। गुरु की सेवा असल में संगत की सेवा है। बस जे इस भावना के नाल सेवा की जाए ना कि मैं किसी बंदे नूं पानी नहीं पिया रहा, मैं किसी विशेष व्यक्ति नूं प्रसादा नहीं छका रहा, ये मैं गुरु नूं पानी पिया रहा। और भाई कन्हैया जी की उस साखी में सानू सिक्ख्या मिलती है कि जे सेवा इस भावना नाल की जाए कि मैं किसी की नहीं गुरु की सेवा ही कर रहा है, यही गुरु की सेवा है, और ये सेवा सिमरन बन जाती है। पर जे भावना तो रह धो के सेवा की जाए केवल विखाउण वास्ते, बड़ी की जाती है, तो सच जाना फिर वो सेवा भी धंधा बन जाता। और खिमा करना की जाती है। गुरु घरां दे विच देखो जदों संगत ने आउणा है, अमृत वेले रोज़ देखी दा भी है, कई बार पैर भी तिलकदा है, भी जदों संगत ने आउणा उदों ही फुरसत होना है। जे सेवा करन दा चाहे जाते घंटा पहलों आओ, जो संगत ने आना उन्हें तक सुक्या होवे, तो जे नहीं तो फिर संगत तो बाद आ जाओ, रात को आ जाओ, क्योंकि उस वेले किसी ने देखना नहीं ना। और एक गुरु घर की गल नहीं, तकरीबन सब दे विच इसे तरह चलता है।
सतगुरु जी कृपा करन, जे सेवा भावना नाल कीती जाए तो वो सेवा ही सिमरन है। पर जे सेवा केवल किसी विखाले वास्ते किते लालसा नूं रख के कीती जाए फिर वो सेवा ही धंधा है। गुरु साहब जी कृपा करदे ने, एक वो ने जिन्हां नूं अपने कोल रख के सेवा दे विच लाया है, एक वो ने जिहड़े कामकार करदे ने पर उन्होंने कामकार नूं ही सेवा समझ लिया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित, क्योंकि जिन्हां नूं अपने मन विच भी ते तन विच भी, मन विच भी ते चित्त विच भी गुरु प्यारा लगता है ना, फिर उन्होंने जिहड़ा दुनिया का धंधा है वो भी सेवा बन जाता है। ते नाल ही कृपा कीती, जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिना भाऊ गुरु देवाइया, क्योंकि गुरु साहब ने उन्होंने अंदर निर्मल भै पा दिता। गुर सिखा इको प्यार, गुर 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 ते विश्राम है, गुर सिखा इको प्यार। गुरु अपने सिखा नूं इको जिहा प्यार करते हैं। किवें देखो जी, कहते गुर मित्ता पुत्ता भाइयां, भावें गुरु के पुत्र होण, भावें भरा होण, भावें मित्र होण, ते भावें आम सिख होवे। ये सानू सतगुरु के जीवन विचों इतिहास विचों मिलता है कि जिहड़े अपने आप नूं पुत्र होण दा माण करते सन वो रह गए, पर जिन्हां ने सेवा कमाई वो गुरु गद्दी के वारस भी बने। गुरु नानक साहब की जोत उन्हां विच टिकी भी। और सतगुरु जी धन गुरु रामदास जी समझाते हैं, गुरु का प्यार सब इक्को जिहा है। वो भावें कोई आम सिख है, भावें कोई गुरु का अपने आप को कहने वाला खास मित्र है, भावें पुत्र है या भरा है। गुर सतगुर बोलो सब, गुर आख गुरु जीवाइया। इस करके सतगुरु धन गुरु रामदास जी कहते हैं, भाई सिखो सारे गुरु गुरु बोलो, क्योंकि गुरु कहने के नाल गुरु आत्मिक जीवन दिंदा है। गुर सतगुर बोलो सब, ते सब एक दो मिनट बोली, फिर इस तो बाद समाप्ति है। गुर सतगुर बोलो सब गुरु साहब जी कह रहे हैं, और सतगुरु के कहने ते बोलीए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु